Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar, lecture in biology, Government Senior Secondary School, Chambo, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Welcome you all once again in the 10+1 biology class. My dear friends, we have discussed in the last class that what are living organism. We are the living organism. Then we have discussed what are the different characteristics we have, which make us differentiating from other non-living objects. हम लोग नॉन लिविंग से अलग कैसे हैं, हम में ऐसे क्या गुण हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एंड टुडे क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग. वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग हियर विद यू. यू माइट हैव सीन इन योर सराउंडिंग देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर देयर. अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग में है, एनवायरमेंट में है. You see the different kind of plants, different kind of animals, and beside them fungi and different kind of microscopic organisms are also there. And we usually call them by the different names. The different animals have the different names depending upon certain characteristics. Then we have the different plants with different names. What is the importance of giving different name to organisms? And one more thing, you have observed that the area where you live, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस रीजन में आप रह रहे हैं, the area where you live, it have certain kind of organism which are not present in other, and some of them they are present in the other region and your region also. कुछ एक ऑर्गेनिज्म, कुछ एक प्लांट्स, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होंगे जो आपके क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, रीजन में भी पाए जाते हैं और दूसरे रीजन में भी पाए जाते हैं. लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो सिर्फ आपके रीजन में पाए जाते हैं, दूसरे में नहीं मिलते हैं, या वे दूसरे में पाए जाते हैं, आपके रीजन में नहीं होते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूं. यू हैव सीन कैंगारूज. कंगारू आपने देखे हुए बेटा, बट आपने टीवी पे देखे होंगे, आपके घर के नजदीक तो नहीं है. नो, बिकॉज देयर नेचुरल हैबिटेट इज ऑस्ट्रेलिया. So we have to move to the Australia to see the kangaroos, either to zoo, otherwise naturally अगर देखना है तो we have to go to Australia. ये कॉन्सेप्ट जो किसी पर्टिकुलर रीजन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो है इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी. तो we are going to discuss in taxonomy in the diversity in living world the biodiversity, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी. हिंदी में जैविक विविधता कहा जाता है. अभी हम देखेंगे इसको. और वन मोर थिंग, वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. वी हैव मैंगो ट्री, वी हैव एप्पल ट्री, वी हैव डॉग, वी हैव लायन, वी हैव बफेलो, वी हैव काउ, कैट. So many are there. This is something related to the nomenclature. I have discussed in the earlier class also regarding the nomenclature. So, what is the importance of giving names or the different names to the different organism? आप इसको थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम डॉग को भी डॉगी कहते और लाइन को भी डॉगी कहते, काऊ को भी डॉगी कहते, तो कितना जो परिस्थिति थी वो कैसी होती. सम पीपल इज सेइंग शेर आ रहा है, लाइन आ रहा है, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट दैट काउ इज कमिंग, आइदर डॉग इज कमिंग, आइदर लाइन इज कमिंग, बिकॉज वी हैव द सेम नेम. हम तो शेर बोलेंगे, हम तो बोलेंगे डॉग आ रहा है. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेमिंग द ऑर्गेनिज्म एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द organisms are present on this earth. मैं अर्थ की बात करूंगा. अर्थ is the planet which have the life. So today discussion is regarding biodiversity and binomial nomenclature system which is used in the biology particularly. Let's see my dear friend here. It's the biodiversity here. See in the picture there are different kind of plants are there. One thing to say you or tell you that the plants of a region
किसी पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं, these are called flora of that region, flora. And animals of particular regions, they are called collectively as the fauna of that region. So flora and fauna. So in this particular forest, you will see there are different kind of flora and fauna, plants and animals. आपके रीजन में भी जो जंगल हैं वहां पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं. They constitute the biodiversity. Let us see what is the literal meaning of biodiversity. देखिए बेटा, मीनिंग पे जा रहा हूं. बायोडाइवर्सिटी, द फर्स्ट, मैंने बोला स्प्लिट करना है, पहले आपको थ्योरी में दिया है, वी हैव टू स्प्लिट द वर्ड्स. बायोडाइवर्सिटी में जो फर्स्ट वर्ड है आप देखें, मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया हुआ है. इट इज बायो, एंड बायो मीन्स लाइफ. माय डियर फ्रेंड, इट इज लाइफ. मैंने पहले भी कहा था बायो इज अ ग्रीक वर्ड, it means life. And what does mean the diversity? Here the diversity is enlarged and it is zoomed out किया है मैंने इसको. And diversity mean variety. और bio life और diversity variety. हिंदी में जैविक विविधता, जैविक विविधता, जीवों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं. तो what is the biodiversity? Let's see here. It is the number and वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया. जो मैंने बोला अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में अलग अलग होगी. कुछ कॉमन होंगे, कुछ नए होंगे, इसलिए डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा. पूरी अर्थ की अगर मैं एज अ लाइफ प्लेनेट बात करूं, द एस्टिमेट ऑफ द स्पीसीज इट इज नियर अबाउट 1.7 to 1.8 million species are there. 1.7 to 1.8 million species are there, my dear friends, on this earth. इतनी जैविक विविधता है और हमने कितने देख रखे हैं वो आप सोचिए. तो व्हाट टू डू नाउ इन बायोलॉजी? आपको करना क्या है? यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच यू नो, विच यू हैव सीन, या जो आप देखेंगे या जो देख लिया है आपने, उसके एक लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी. एंड विद द टाइम वी पीपल विल गो थ्रू द नेमिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. व्हाट आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म? इट इज अ वेरी इजी टास्क माय डियर फ्रेंड्स. डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान काम मैं आपको दे रहा हूं और देखेंगे समय के साथ आपको हर एक बात आ जाएगी. तो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग द नंबर एंड वैरायटी ऑफ द स्पीसीज, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया. ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों. ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, प्लेनेट विद द लाइफ, ओनली प्लेनेट विद लाइफ, इट हैव, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इट्स वैल्यू फ्रॉम एंट टू एलिफेंट. चिंटी से लेके हाथी तक सबका अपना अपना महत्व है. इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, इस वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए सबका अपना अपना महत्व है. एंड बायोडाइवर्सिटी इज द सोल फॉर लाइफ. ये जीवन की आत्मा है. ईच लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू इट. सभी, मैंने जैसे कहा, चिंटी से लेके हाथी तक इसका सभी का अपना अपना महत्व है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Number, I will give you the number here. Our chart is there. Angiosperm having 50,000 species, gymnosperm plants हैं. आप आगे पढ़ेंगे. Pteridophyte, there is a number. पर फिर भी मैं एक और बात आपको बता दूं. These are the insects. My dear friend, insects. मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रही बातें. Insects are very important. Insects are the most abundant organism on this earth. कीड़े मकोड़े जिन्हें हम कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं. कॉकरोच इज वन ऑफ देम. यू हैव सीन देम. और इनकी पहचान मैं अगर बता दूं, अगर आपने इंसेक्ट को पहचानना है तो दे मस्ट हैव द 6 legs, माय डियर फ्रेंड. दैट मीन द 3 pairs ऑफ लेग्स. ये आप देख लें, इंसेक्ट वही होगा जिसमें 6 टांगे होंगी, 3 pairs ऑफ लेग्स होंगे. इस बात को आप ध्यान में रखें. ये मैंने एक आपको ट्रिक बता दिया कि इंसेक्ट को कैसे पहचानना है. तो इंसेक्ट इस धरती पे बहुत ज्यादा है. Near about they are having the number in millions. ठीक है, काफी अच्छे से डिटेल में करेंगे फाइलम में आपके साथ. तो नंबर इज वेरिंग. द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट स्पीसीज नंबर. नाउ दिस इज द पाई चार्ट शोइंग द स्पीसीज नंबर. हियर यू कैन सी देयर आर, यू नो, इंसेक्ट्स आर देयर. अगर आप देखें एनिमल्स में, अगर देखें तो सबसे ज्यादा बेटा इंसेक्ट्स ही हैं.
नियर अबाउट द 80% ऑफ द एनिमल्स ऑन दिस अर्थ दे आर इंसेक्ट्स। पर आप सोचिए कि आपने कितने इंसेक्ट्स अभी तक देखे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ देम, मेक अ लिस्ट ऑफ देम, you have to do this, and later on we will study and we will discuss all these fishes, mammals, birds, how many type of the different, with number we will discuss with number with you. Okay, what is the importance, how do we value biodiversity, हमें क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, क्या जरूरत है बायोडाइवर्सिटी को कि हम सस्टेन करें, इसको मेंटेन करें। माय डियर फ्रेंड्स, इट हैव बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज। देयर आर एस्थेटिक वैल्यूज आर देयर। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जो बायोडाइवर्सिटी है और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं इन दोनों को हम कंपेयर कर पाएंगे, दोनों का अपना अपना महत्व है, बट बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। It have direct and indirect both values. Directly, we all are, dependent on directly on the plants, on other animals for some of the products, for our food, for our shelter, for milk. आप दूध पीते हैं बच्चों, कहां से लाते हो? गाय से लाते हैं। Cow will give you the milk. आपको अगर if you are you are taking the meat, then from animals we got it. जो हमें अनाज मिलता है कहां से मिलता है बच्चों? फ्रॉम प्लांट्स we will got it. तो डायरेक्ट जो इसके रिलेशन में हमें सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। एंड बिसाइड दिस सम इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यूज आर आल्सो देयर। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ ऐसा है जिससे हमें अगर फूड नहीं मिल रहा है तो इंपॉर्टेंस का है ही नहीं। ये सोच हो चुकी है आजकल के जमाने में, बट दिस इज नॉट गुड। वी आर कटिंग द ट्रीज, दिस इज नॉट गुड। माय डियर फ्रेंड्स, द बायोडाइवर्सिटी हैव द इनडायरेक्ट वैल्यूज, लाइक ग्रीन प्लांट गिव अस द व्हाट? ऑक्सीजन। दे मेंटेन द वाटर साइकिल। तो बहुत ज्यादा जो ह्यूमन के लिए तो जो बायोडाइवर्सिटी इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ ड्यूटी, इट्स द नीड ऑफ द डे that we must preserve biodiversity so we can preserve our life. अगर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना है, जीवन का संरक्षण करना है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना ही पड़ेगा। तो काइंडली परफॉर्म योर ड्यूटी। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द nomenclature of organism, my dear friend. Nomenclature, there are two words. Latin words हैं, nomen means name and clare means to call. Nomen mean name and clare mean to call. So nomenclature कुछ नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर स्पेसिफिक, प्रॉपर सही, स्पेसिफिक खास और डिस्टिंग्विश जो उसे दूसरों से अलग करता हो, ऐसे नाम को देने की जो साइंस है इसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो नोमेनक्लेचर मीन्स मेकिंग एंड गिविंग proper, specific and distinguishing name to each and every organism present on this earth, from bacteria to elephant, from water algae to angiospermic plant, flowering plants जो 300 फीट बड़े होते हैं, ये nomenclature में होता है। My dear friends, there are two kind of names. One are common or vernacular names and other are scientific names. दो प्रकार के नाम होते हैं, एक कॉमन नाम लोकल भाषा के जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरे साइंटिफिक नेम्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज। सी हियर फर्स्ट द वर्नाकुलर नेम। व्हाट आर द वर्नाकुलर नेम्स आर देयर? दे आर नथिंग, दे आर द लोकल नेम्स यूज्ड बाय द पर्संस इन अ पार्टिकुलर रीजन एंड लैंग्वेज। देखिए अलग अलग, आपको तो पता है हमारे देश में तो बहुत ही विविधता है, अलग अलग से लैंग्वेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करती हैं। अपर जो हिमाचल है उसमें अलग है, लोअर हिमाचल में अलग है, डिस्ट्रिक्ट्स में अलग है। इंडिया में देखें तो तमिलनाडु में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है, अलग अलग रीजन का अपना है। मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, पंजाबी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेजेस देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स इन देयर लोकल लैंग्वेजेस। इट इज ऑल्दो देयर, ये बड़ा एक है। आप देखें कि जैसे मैं बोलता हूं रोज इन इंग्लिश, इंग्लिश में रोज है बेटा, हिंदी में इट इज गुलाब, गुलाब इन हिंदी, एंड इट इज गुलाब इन बंगला, गुलाब,
एंड रोजापो, मैंने तमिल भी पढ़ा है अपना 6th क्लास में जेएनवी पंडो में, तो रोजापो इन तमिल, डिफरेंट नेम्स फॉर सिंगल ऑर्गेनिज्म, दे आर देयर, एक ही ऑर्गेनिज्म है गुलाब, पर अलग अलग से नाम है बेटा। इनका फायदा तो यह है कि दे आर इजी टू रिमेंबर, दे आर इजी टू से। ये तो बहुत अच्छा है कि जो नेटिव पीपल है दे आर वेरी फेमिलियर विद दिस, जो लोकल जो लोग हैं उनके पास बड़ी फेमिलियरिटी होती है, वो इजीली बोल देते हैं। बट डिसएडवांटेज इन साइंसेज आर देयर, इसलिए हम वहां पे इनको यूज नहीं करते। क्यों? डिफरेंट रीजन हैव द डिफरेंट नेम फॉर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो सपोज वी आर स्टडिंग हियर समथिंग फॉर द मैंगीफेरा इंडिका, मैं भी नाम लूंगा मैंगो ट्री, डरिए मत, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, आप देखेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको, मैंगो का नाम है। अगर मैं मैंगो बोल रहा हूं इंग्लिश पीपल विल अंडरस्टैंड, पर जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी वो मैंगो जानेंगे नहीं। मैं आम बोल रहा हूं, जिन्होंने हिंदी जानते हैं वो जानेंगे, लेकिन इंग्लिश पीपल दे नॉट नो द मैंगो। तो साइंस में सिंक्रोनी नहीं हो पाएगा, एक जैसी बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए इनका हम वहां पे यूज नहीं करता। और दूसरी बड़ी बात, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम लोकल नेम देते ही नहीं है, दिया ही नहीं है। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें तो बड़े ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका तो लोकल भाषा में नाम ही नहीं है, हम बोलते हैं जी कीड़े मकोड़े हैं, टिड्डे हैं, और दिस इज रॉन्ग। इन साइंस एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश्ड नेम एंड अ प्रॉपर नेम। वन मोर, अ पार्टिकुलर रीजन डू नॉट हैव ऑल द ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरी बात तो ये है कि नाम तो हम दे ही दें, पर जो ऑर्गेनिज्म हमारे यहां पे है नहीं उसको हम किस नाम से बोलेंगे? वी ड्राइव द नेम फॉर दैट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर लैंग्वेज। सो वर्नाकुलर नेम्स दे आर नॉट हैविंग एडवांटेज टू बी यूज्ड इन द साइंस। साइंस में इनका हम इस्तेमाल करें, इसके लिए इनके पास इतने अच्छे गुण नहीं है, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो लेट अस सी द अर्लियर वर्क इन साइंस। देखिए बात 2000 ईयर अगो, इट इज 300 BC, इट इज 300 BC बेटा। एरिस्टोटल जब थे, तो मैं अगर बात करूं तो लगभग 2320 साल पहले की बातें आपसे कर रहा हूं। 2320 years ago from this day, Aristotle, who is the father of the biology, he was the first taxonomist, my dear friend. He was the first taxonomist on this earth. इन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। कुछ एक ऑर्गेनिज्म के नाम थे, लेकिन वो स्पेसिफिकली नहीं कर पा रहे थे। What he classified the organism on the basis of their habitat, land या sea, or whether they are living in air, whether they have blood or not, कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था। साइंस में सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज द जॉन रे, a botanist, who used the Latin language to name the organism, and his names were very very long. ऐसे नहीं थे जो हम पढ़ेंगे, जो बेस्ट नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, बड़े लंबे लंबे नाम होते थे, डिस्क्रिप्टिव होते थे, कहावत की कहावत होती थी, एफोरिज्म होती थी। वो कैसी, यहां मैं आपको दिखाता हूं। सच काइंड ऑफ बिग नेम्स, पॉलिनोमियल नेम्स आर दीज। पॉली मीन मैनी, नोमियल मीन नेम्स। एक नाम के अंदर कई नाम होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी हियर ऑन द स्क्रीन। सी, इट्स अ कैरियोफाइलम Saxatilis, Follis, Gramineous, Umbelatus, Corymbia for Caryophyllum. Caryophyllum एक प्लांट है बेटा, उसके लिए कितने वर्ड? 6 वर्ड का नेम था। So it is polynomial names. Poly mean many, nomial mean names. तो अर्लियर जो जॉन रे वगैरह यूज कर रहे थे, they are using the polynomial names. With the time, science developed and trinomial nomenclature came into existence. Tri mean 3, nomial mean nomenclature. They are having the name Homo sapiens sapiens for man. हमारा जो नाम है वो क्या है? Homo sapiens sapiens. ऐसे ही this is the Corvus splendens. Corvus splendens insolens. This is the crow. Corvus splendens insolens. 3 words name. This also have some disadvantages. There is an inclusion of the sub variety, पर ये नाम भी अब तक यूज नहीं किए जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। द बेस्ट सिस्टम
in the nomenclature of scientific names, it is the, on your screen, binomial nomenclature system. Bi means two or twice, nomen means name, clair means to call. एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो शब्द होंगे, two words are there, two names are there. This was proposed by the Carolus Linnaeus in 1751 in his book Philosophy Botanica. सबसे पहले जो उसका कॉन्सेप्ट दिया था फिलोसफी बोटानिका में दिया था, किसने दिया था? कार्लस लिनेस. He is Carolus Linnaeus in 1751. He is the Carolus Linnaeus. आइडिया दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ नेचर लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ नेचर. इट वॉज द बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जहां पे इन्होंने एनिमल्स के लिए नेम दिए थे. ये 18th सेंचुरी के टैक्सोनॉमिस्ट थे. He is known as the father of taxonomy. He classified the organism on the basis of their structure. He developed the naming system. Still we use that system, my dear friends. Today we are using that. What a great approach this man had. So इनका दिया हुआ सिस्टम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आज भी यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर. He is known as the father of taxonomy. Okay, and the binomial nomenclature was given by him. According to him, there are two words name. Two words के name होते हैं. One is genus and one is species. Let us see the various rules for binomial nomenclature system. See here. बेटा मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगा, आप ज्यादा समझ पाएंगे. आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है, आप उसे भी देखेंगे. मैंने लिखा है इट इज मैंगीफेरा. आप देख रहे हैं मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. देन इंडिका द्वारा मैंने अंडरलाइन किया, मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका. अब आप इसमें नोट करेंगे सारे के सारे रूल इसी लिखने में आगे मैंने लिखा एल स्टैंड फॉर लिनेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ लिनेस. क्योंकि ये नाम लिनेस नहीं दिया था इसलिए हमने एल लिखा. आपने देखना क्या है, ये लिनेस ने कहा दिस मैंगीफेरा इज द जीनस और जेनरिक एपिथेट एंड इंडिका इज द स्पीसीज. ये स्पीसीज है बेटा. ओके, आप यहां पे देखिए जब मैंने लिखा तो मैंने कैपिटल लेटर लिखा. जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट लेटर माय डियर फ्रेंड्स. फॉर जीनस इज कैपिटल, फॉर स्पीसीज इट इज स्मॉल. लिखा है ना स्मॉल, ठीक है. दोनों को जब मैंने लिखा तो इनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है कहीं पे इन दोनों के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं है बेटा. ये भी रूल है, लिखने के मैं रूल बता रहा हूं. पहला कैपिटल लेटर होगा जीनस का, स्पीसीज का कौन सा होगा? स्मॉल लेटर होगा, फर्स्ट जो आपका लेटर होगा. एंड दे आर रिटन सेपरेटली, दे आर अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन. जब हम हाथ से लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन किया जाता है बेटा सेपरेटली. वी अंडरलाइन देम सेपरेटली. व्हाट व्हेन दे आर प्रिंटेड देन दे आर इटैलाइज्ड. आप कभी बुक में पढ़ेंगे तो आपको वो इटैलिक्स में दिखाई देंगे जैसे मैंने वहां पे लिखा हुआ है. ये प्रिंटिंग में होगा. जब प्रिंटेड होते हैं तो दे मस्ट बी इटैलाइज्ड एंड व्हेन हैंड रिटन दे मस्ट बी अंडरलाइन. लिखने से ही सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा. तो लिखना बहुत जरूरी है. मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द अथॉरिटी. अथॉरिटी इज द पर्सन हु गेव नेम. अथॉरिटी क्या होता है बेटा? अथॉरिटी वो आदमी होता है जिसने सबसे पहले नाम दिया है. तो एल से क्या हुआ? लिनेस. लिनेस ने नाम दिया हुआ है. लेट्स सी हियर नाउ. सी ऑन योर स्क्रीन मैंगीफेरा इंडिका लिनेस. First word is Mangifera representing the generic epithet or genus, while second word is indica, it is representing species or specific epithet. Both are underlined separately if handwritten, बताया मैंने, and italicized when printed. Both are written separately. No punctuation mark between them. And the word after the species represent the authority. Authority is the person who gave this name for the first time, my dear friends. Then see here. देखें आप, सॉरी
नाउ वन मोर रूल इज देयर। देखिए क्या है, हमें देखेंगे कि जितने भी नाम आप देखेंगे जीनस और स्पीसीज के, इनमें रूल है कि इनमें कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो 12 लेटर का हो सकता है, नॉट मोर देन 12 लेटर्स। तो जीनस एंड स्पीसीज नेम मस्ट हैव एटलीस्ट 3 लेटर्स एंड नॉट मोर देन 12 लेटर्स। वन इज दिस रूल। वन मोर रूल इज देयर, दिस इज लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा वर्कर्स ने, एक से ज्यादा वर्कर ने नाम दे दिए, तो वहां तो फिर बात है, वहां तो विवाद हो जाएगा कि किस जो साइंटिस्ट का, किस वर्कर का नाम जो है वो माना जाए। तो इसके लिए भी रूल है। वो रूल क्या है? इन केस ऑफ प्लांट्स एक डेट निश्चित की गई है, वो क्या है? इट इज द 1 मई 1753। ठीक है, ओके। 1 मई 1753 में जो प्लांट्स के नेम हैं जो 1 मई 1753 के बाद वाले होंगे, 1 मई 1753, उसके बाद वाले होंगे, वही मान्य होंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि लिनेस ने लगभग उससे पहले के जो नेम्स थे उनको क्लैरिफाई कर दिया था और अपनी बुक जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, उसके अंदर पब्लिश कर दिया था। तो उसके बाद के जितने नाम आएंगे वो उस डेट के बाद ही होंगे प्लांट्स के लिए, 1 मई 1753। एंड फॉर एनिमल्स इट इज द 1 अगस्त एंड 1758। 1758 और 1 अगस्त के बाद के जो नाम होंगे वो एनिमल्स के लिए वैलिड होंगे। इट इज द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ 10th edition of his book. The name of the book is Systema Naturae. ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ प्रायोरिटी माय डियर फ्रेंड्स। तो 1 मई 1753 के बाद के नाम वैलिड होंगे प्लांट्स के लिए क्योंकि वो स्पीसीज प्लांटर में पब्लिश हुआ था उस दिन, और एनिमल्स के लिए 1 अगस्त 1753 के बाद के नाम होंगे क्योंकि उस दिन जो 10th edition था वो सिस्टमा नेचर बुक का इनकी का आया था। आप इन बुक्स के भी नाम याद कर लीजिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूजुअली आस्क्ड इन द नीट माय डियर फ्रेंड्स। देन सी, रूल तो दिए थे, रूल्स वर फ्रेम्ड इनिशियली बाय द लिनेस बट लेटर ऑन दे आर मॉडिफाइड बाय द वेरियस कॉन्फ्रेंसेस, दे मेड अ कोड, दीज आर कॉल्ड कोड्स। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वहां पे साइंटिस्ट पूरे विश्व के आते हैं और वे सर्टेन रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को कोड कहा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट रूल्स विच हैव मॉडिफाइड दिस concept in the 19th and 20th centuries, and it is ICBN. ICBN stand for International Code of Botanical Nomenclature. ICVACN, it is International Code of Bacterial Nomenclature. ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. ICVN, International Code of Viral Nomenclature. ICNCP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plant. ये जो पौधे हम कल्टीवेट करते हैं इनके लिए अलग से एक नॉमेनक्लेचर का रूल्स हैं, ये कोड्स में दिए जाते हैं। उनके अनुसार अगर मान लीजिए आप नई डिस्कवरी करेंगे, आप कोई नया प्लांट, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल अगर आप डिस्कवर करते हैं तो यू हैव सेटिस्फाई ऑल दीज रूल्स, देन एंड देन दे विल गॉट पब्लिश्ड एंड यू आर क्रेडिटेड विद द criteria or your name of an taxonomist in the whole of the world. Do it. Now see, there are disadvantages of binomial nomenclature system. मैं आपको बता दूं, nil disadvantages are there. मैंने जानबूझ के लिखा हुआ कि आप देखें, विज्ञान में हमने इसको यूज किया बेटा। इट इज द सिस्टम विद nil and no disadvantages. It have advantages because you will see in the picture people are using different languages for no common name जो use कर रहे थे, some are saying anemone, skunk, ses, अलग। मैं कुल मिला के इस पिक्चर में बताना चाहता हूं कि अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं और ऑर्गेनिज्म इज सिंगल हेयर माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए, एंड दे गॉट कंफ्यूज फॉर दैट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की एडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आर नॉट देयर। एडवांटेज क्या है? सी देयर, लैटिन नेम्स आर अंडरस्टूड बाय ऑल द टैक्सोनॉमिस्ट। पूरे के पूरे विश्व के जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ये जो एनिमल आपके सामने है, इट इज मेफाइटिस, जब सबके लिए एक ही नाम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट वो कहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इसका नाम है मेफाइटिस माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज समथिंग अबाउट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, अर्लियर बायोडाइवर्सिटी एंड देन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर माय डियर फ्रेंड्स। हमने किया, कोशिश से आपको पता लगा होगा।
आप एनलिस्ट कीजिए ऑर्गेनिज्म को अपने एरिया के और उसकी नेम्स लिखिए। धीरे धीरे आपको सारे के सारे नाम पता चल पड़ेंगे और आपको इजी लगेगा। बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस माय डियर फ्रेंड्स। इट विल टेल अस अबाउट एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं। मैंने कल बात की थी कॉन्शियसनेस, वो तो हमें है, लेकिन ये सारी बातों को आपको बताएगी। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।